آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ پہلے 3 جزیروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان جزیروں میں ایک تو ہے ابو موسیٰ اور 2 ہیں گریٹر تمب اور لیسر تمب. تھرو یو اے تھرو یو اے نہیں، یو اے کے دیکھیں ابو موسیٰ پہ یو اے کا کلیم ہے کہ یہ ہمارا ہے، لیکن قبضہ ایران کا ہے. یو اے آج تک ایران سے کوئی ابو موسیٰ کا قبضہ تو نہیں لے سکا. ایک کلیم ہے نا ان کا. جیسے دنیا میں بارڈر 2 ہمسایوں کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ایسے یو اے اور ایران کے درمیان ابو موسیٰ کے اوپر ایک بارڈر ڈسپیوٹ موجود ہے. وہ یو اے کہتا ہے یہ ہمارا ہے، ابو ایران کہتا ہے ہمارا ہے، لیکن قبضہ ایران کا ہے. جی. اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز میں کچھ 6 جزیرے ہیں، لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا جو ٹارگٹ ہے امریکہ کا وہ 3 جزیرے ہیں، ابو موسیٰ، گریٹر تم اور لیسر تم. یہ 3 جزیروں پر امریکہ اپنے میرینز اتارنا چاہتا ہے یا گراؤنڈ فورسز اتارنا چاہتا ہے یا وہاں پہ بمباری کر کے اس کو فلیٹ کر کے ان پر اپنی چوکیاں قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کی ٹریفک کو کھولا جا سکے. تو ایران کی تو اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے تیار ہے، وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. ٹھیک، میں تو اسی لیے میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے. اب بمباری والی جنگ نہیں چلے گی، اب ہمیں ریگولر جو ہے ایک لڑائی ہے اس کی ایک شکل نظر آنی شروع ہو گئی. وہ لمبی بھی چل سکتی ہے. دیکھیں لمبی چلتی ہے یا چھوٹی چلتی ہے، جزیروں پر قبضہ کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. جزیرے پر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا، ان کا ہیومن لاس زیادہ ہو گیا تو وہ پھر واپس جانے کی بات کریں تو امریکہ اگر ایسے آپریشنز میں ناکام ہو جائے تو بھاگتا بھی بہت جلدی ہے. اور اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ جشن بھی بہت مناتا ہے. جشن تو پہلے ہی منا لیتے ہیں، کامیاب نہ بھی ہو تو خیر. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وننگ ٹرافی ہے نا ایران امریکہ اسرائیل لڑائی کی، وہ آبنائے ہرمز بن گئی ہے. اس سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کی وننگ ٹرافی تھی رجیم چینج. اب جو ہے رجیم چینج جو ہے وہ وننگ ٹرافی نہیں رہی. اب وننگ ٹرافی ہے آبنائے ہرمز. اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وننگ ٹرافی ایران کے پاس ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل آبنائے ہرمز کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر امریکہ اور اسرائیل فاتح ہیں. اچھا، ابھی تک کی مزمل صاحب جو ایک اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کو لے کے، رجیم چینج لے لیں یا پھر جو صلاحیت تھی ان کی میزائلز بنانے کی، اس حوالے سے ایک انکراف ایسٹیمیٹ دیکھ لیں، اس حوالے سے یہ کافی بدگمانی کا شکار تھے امریکہ اور اسرائیل. ایران اس کے برعکس مسلسل اپنی تیاری کر رہا ہے اور خاموشی سے اٹیک بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے. ایران ایک لمبی لڑائی کی تیاری میں ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روزانہ 200 میزائل چلا رہا ہے، وہ ایک مخصوص تعداد کے میزائلز اور ڈرونز چلاتا ہے مخصوص ٹارگٹ سے، جس سے یہ لگے کہ ایران جواب دے رہا ہے اور ایران کا جواب مؤثر ہے. اور ایران ایک لمبی لڑائی کے And they are not ready to surrender. ابھی تک. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اب جو لڑائی کا مرکز آ گیا ہے، اب وہ رجیم چینج بھی ختم ہو گیا. Strait of Hormuz. اب جو لڑائی ہے وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی ہے. اگر تو ابھی تک آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے. وہ جس جہاز کو چاہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں، جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. چین بھی اپنے جہاز ایران کی مرضی سے لے کے جاتا ہے، ایران بھی، پاکستان بھی ایران کی مرضی سے لے کے جاتا ہے، انڈیا نے بھی جہاز گزارے ہیں ایران کی مرضی سے گزارے ہیں. تو جہاز ایران کی مرضی سے چلتے ہیں، جس کو ایران اجازت دے دے وہ جاتا ہے، جس کو ایران اجازت نہ دے وہ واپس مڑ جاتا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ 3 جزیرے امریکہ قبضہ، ایک 2 منظرنامے. ایک یہ ہے کہ یہ ابو موسیٰ، گریٹر اور لیسر تم جو 3 جزیرے ہیں ان پر امریکہ قبضہ سپوز، تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ خرق کا محاصرہ، وہ ناکہ بندی کرتے. اس کے نتیجے میں 2 کام ہوں گے. ایک آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور دوسرا ایران کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی کیونکہ وہ 90% خرق سے ہیں. ابھی امریکہ خرق پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا. جو ابھی تک کی خبریں آئی ہیں یا ابھی تک جو انٹرنیشنل ڈیفنس اینالسٹ کر رہے ہیں بات، وہ اس میں خرق پر قبضے کی بات نہیں ہے میرے سامنے آئی. اس میں خرق کی ناکہ بندی کی بات ہے. جب وہ 3 جزیروں پر امریکہ بیٹھ جائے گا، پہلے والے 3 جزیروں پر، تو اس کے بعد وہ 4تھے جزیرے کی
नाका बंदी करेगा। उसके अलावा भी 2 जजीरे वहाँ पर मौजूद हैं आबनाए हुर्मुज़ पर, जिन पर ईरान की चौकियाँ और सब कुछ मौजूद है। उनकी बाद में बात की जाएगी। टोटल 6 जजीरे हैं जो इनके ज़रिए ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब दुनिया की नज़रें जो हैं ना, वो इस बात पर नहीं हैं कि ईरान पर कितनी बमबारी होती है। दुनिया की नज़रें इस बात पर भी नहीं हैं कि ईरान ने जवाब में तल अवीव पे कितने मिसाइल चलाए, दुबई पे कितने मिसाइल चलाए, कुवैत पे कितने चलाए, कतर पे कितने चलाए, बहरीन पर कितने चलाए। दुनिया इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। दुनिया मामला सुलझने की तरफ अब मामला क्या है आबनाए हुर्मुज़ का, कि मामला जो है वो दुनिया की गर्दन काबू में आ गई है आबनाए हुर्मुज़ से। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होता है तो फिर मेरा मतलब है कि दुनिया तो क्या मुज़म्मिल साहब ईरान ने वार्न नहीं किया था जंग से पहले, मुसलसल वार्न किया था? देखिए आप अटैक करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, तो क्या उस वक्त ये स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं था? इन्होंने सोच समझ के नहीं किया? नहीं, देखें लास्ट टाइम 12 दिन की जंग में ईरान ने नहीं किया था आबनाए हुर्मुज़, नहीं उसके बाद मुसलसल कहा। लेकिन अब देखिए ना, ईरान के अपने जो दोस्त ममालिक हैं, मसलन जिन ममालिक से ईरान की अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासर हैं। आप बात समझें, ऐसा नहीं है कि ईरान ने जब आबनाए हुर्मुज़ बंद किया है तो उसके नतीजे में ईरान के दोस्त मुतासर नहीं हो रहे, इट्स अ कलेक्टरल डैमेज ना। तो इस वक्त तो ईरान अपने दोस्तों की कुर्बानी भी देने को तैयार है कि अगर मेरे दोस्तों का नुकसान भी होता है तो हो जाए। मतलब हम पाकिस्तान ईरान का दोस्त है ना जी, हम पे तो ईरान कोई बमबारी नहीं कर रहा, हम पर उसने कोई ड्रोन नहीं चलाया, हमारे हक में तो ट्वीट्स किए हैं, हमारे हक में तो बयान दिए हैं। आज भी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है जिसका अब्बास इराक़ची भी इकरार करते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत हो रही है, तो पाकिस्तान पर कोई ईरानियों का एतमाद मौजूद है ना, तो पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत हो रही है। लेकिन पाकिस्तान भी बहुत मुतासर है और पाकिस्तान ने भी पीछे अपने जो कंटेनर गुजारे हैं वो ईरानी टैंकर्स गुजारे हैं वो ईरानियन इजाज़त से हैं, और एक हमारा जो फूड का टैंकर है वो रोका भी गया है और उसके रोकने की भी इतलात हैं कि उसको ईरानियंस ने ऑयल को आने दिया है, फूड को रोका है उन्होंने। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि दुनिया अगले 10-12 दिन में एक बड़ी जंग की तैयारी में है। हम ये कह सकते हैं कि ये जंग का शायद फाइनल फेज हो, क्योंकि अगर तो अमेरिका कामयाब हो जाता है तो फिर वो आबनाए हुर्मुज़ खोल लेगा, ईरान की नाकाबंदी कर लेगा, तो उसके बाद ईरान की ये रजीम बैठी भी रहे तो ये फिनेंशियली इस पोजीशन में नहीं होगी कि सरवाइव कर सके। इस जंग की कीमत सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात चुका रहा है, ऐसे ही है ना? नहीं कहा जा, देखें अभी उनका कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। आप ये तो नहीं कह सकते कि बुर्ज खलीफा उड़ गया है, आप ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ उनका कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर तबाह हो गया है। उन पर जो ड्रोन और मिसाइल हो गई है और जितना थ्रेट अभी तक उनको है, थ्रेट जरूर है और यूएई सबसे वोकल नजर आ रहा है। देखें इन जजीरों की लड़ाई का मेन बेनिफिशियरी भी यूएई होगा, क्योंकि अबू मूसा पे तो यूएई का क्लेम है, और अगर यूएई को ये जजीरे मिल जाते हैं तो आबनाए हुर्मुज़ पर यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और यूएई चाहेगा कि मेरा आबनाए हुर्मुज़, मेरे जजीरे मुझे वापस मिल जाएं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूएई के वजीर पेट्रोलियम इस वक्त जो हैं वो वाशिंगटन में हैं और वो जेडी वैंस को भी मिले हैं और वो सेक्रेटरी वॉर को भी मिले हैं। लेकिन सब जानते हैं कि अमेरिका ज़मीनी जंग से भागता है, उनकी फौज भाग रही है, इजराइल की फौज की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, अंदरूनी बगावतें हो रही हैं। देखें कोई अमेरिकी फौज में बगावत नहीं है, ना वो भाग रही है। सवाल ये है कि हर मुल्क अपने फौजी जो है वो मरवाने से डरता है। ह्यूमन लाइफ की अपनी एक कीमत है, और अमेरिका में तो देखें वहाँ पॉलिटिक्स इतनी वाइब्रेंट है और फिर वहाँ नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात हैं। अगर ज़्यादा जानी नुकसान हो जाता है, ज़्यादा बॉडी बैग्स जाएंगे, तो ट्रम्प के लिए पॉलिटिकली बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा कि इसने खतूत मुसलसल मिल रहे हैं इस टाइम, इसने इतने फौजी मरवा दिए। देखें वो ज़्यादा बॉडी बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई किराए की फौज भी अरेंज की जा रही है, जैसे ब्लैक वाटर के जरिए जो दुनिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं जो फौजें देते हैं, रिक्रूटमेंट्स करते हैं कुछ गरीब मुल्कों से जाकर। किन ममालिक की तरफ इशारा है मुज़म्मिल साहब आपका? मुख्तलिफ दुनिया के गरीब ममालिक जो हैं वहाँ से ये जो
कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये रशिया भी कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी यूज़ करता रहा है। इवन इस वक्त कह रहे हैं वेनेजुएला में जो अमेरिका ने ऑयल फील्ड्स पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी लगाई हुई है, इसे कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी कहते हैं। मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल इस तरह की आर्मी देते हैं। कह रहे हैं कि पहले अमेरिकन मैरीन्स नहीं होंगे, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी आएगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से होंगे, वो करेंगे जो उसके बाद फिर उसके बाद जब नीचे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और सेफ हो जाएगा तो फिर अमेरिकन आर्मी आएगी। थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है, तो आज ईरानी सदर ने मलेशियन जहाज़ों को इजाज़त दी तो फिर ईरान ने इजाज़त है ना। तो फिर जंग में इस वक्त कंट्रोल तो ईरान का है कि हर मुल्क अपना जहाज गुजारने के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। ये जो ईरान की पोजीशन है ना कि हर जहाज ने गुजरने के लिए ईरान से इजाज़तनामा लेना है। कोई कहता है वो युआन में पैसे लेते हैं, कोई वो कहते हैं आगे जाके हम इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, जैसे स्वीज कैनाल पे टैक्स है। तो ये चीज़ तो फिर होगा कि जंग से तो ईरान मजीद मजबूत होकर निकलेगा। चाइना का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। देखें, एक और फ़ायदा है इस वक्त ईरान को। ईरान इस जंग से पहले कुछ $40-45 पर बैरल पे तेल बेच रहा था ईरान। इस वक्त वो $100 पे बैरल पे बेच रहा है, क्योंकि दुनिया में जो कीमत है उसके ऊपर बेच रहा है। और ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स जो पहले 1.2 मिलियन बैरल थी वो इस जंग के दौरान 1.5 मिलियन बैरल हो गई हैं। मतलब उनकी तेल की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि उनके पास तो अपनाए हरमस खुला है ना, और वो चाइना को दबादब जो है तेल बेची जा रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो 10 दिन की मोहलत ली है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, हम कह लें उन्होंने ली है या दी है, लेकिन इस बार ईरान तैयार है, दोनों ईरान की तैयारी ज़्यादा है। तो देखिए फिर अमेरिका भी है, अपने एसेट्स को मूव कर रहा है। जब जंग होती है तो फिर दोनों ने लड़नी होती है। अभी कोई अमेरिका ने जंग बंद करने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से हमाकत होती है तो दूसरा फायदा उठाता है। जी, अब जंग में आपको पता है ये गलती आपको जितवा भी देती है, मरवा भी देती है। ये अब देखने वाली बात है कि ये जजीरों की जो जंग है ये आगे जाके क्या शक्ल लेती है, और इसी पर मेरे ख्याल में इस सारी जंग का जो मुस्तकबिल है वो नजर आ रहा है। हमेशा के लिए ईरान मजबूत होता नजर आएगा या फिर ईरान को कमजोर करने की ख्वाहिश है, निकल जाएगा और वो मजीद माशी बहरान का शिकार हो जाएगा।